Here we are resuming our video. So, stereoisomerism. The word stereo means three-dimensional, 3D. So, the isomerism which is caused in 3-dimension changes of structures is called stereoisomerism. First of all, we have to understand what is isomerism. So, to understand isomerism only, just to see here, isomerism. Isomerism, we have two parts of isomerism. Basically, those are configurational isomerism and conformational isomerism. So, now, configurational isomerism. The configurational isomerism is non-interconvertible, and because they are non-interconvertible at general conditions, that is at room temperature and pressures, so these are easily isolable. One isomer can be isolated from other isomer in the room temperature condition. Conformational isomers are those isomers which are interconvertible very easily at room temperature and in standard conditions. So these are non-isolable at room temperature or at any specific conditions. So first come here, configurational isomers has two parts. One part is enantiomer and second part is diastereomer. Enantiomers is optical only isomers. It causes due to the chiral center of carbon. We will see in detail. हम लोग इसे बाद में डिटेल में देखेंगे. Second one is diastereomers. Diastereomers दो टाइप के होते हैं. There are two types of diastereomers. One is optical diastereomers and another one is geometrical isomers. Geometrical isomers are also called diastereomers. The definition of enantiomer and the definition of diastereomers can be easily understood. Those optical isomers which are mirror images of each other are called enantiomers. Suppose this is a structure representing a chiral carbon. Chiral carbon we will later on, we will discuss on chiral carbon also when we will read enantiomers. So don't worry right now. So if this is a mirror, then what should be the mirror image in this side? So in this side we will see image like this. So these one and these two structures are enantiomers. These two structures are enantiomers. So definition of enantiomers is those optical isomers which are mirror images of each other are called enantiomers. The definition of diastereomers is just opposite to enantiomers. Those optical isomers which are not mirror images of each other are called diastereomers. फिर से सुनिए, वैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो, नॉट मिरर इमेजेस. सो enantiomers आर मिरर इमेजेस and diastereomers are not mirror images. So not mirror images isomers arises in optical isomers also and in geometrical isomers also. In optical isomers where there are more than one chiral center, example 2 chiral centers, 3 chiral centers and so on, then there will be non-mirror image optical isomers and they will be called diastereomers. In case of geometrical isomers, the geometrical isomers arises due to the rotation of carbon-carbon double bond. Here we have to see the conformational isomers arises due to rotation of carbon-carbon single bond and the geometrical isomer arises due to rotation of carbon-carbon double bond. In this scenario we can see the carbon-carbon double bond structure. The carbon-carbon double bond structure is a pi bond structure. So this is a sigma bond and this should be a pi bond skeleton. And here we have another sigma bonds. So what we can see here that due to this carbon-carbon double bond,
this rotation of this carbon-carbon double bond is hindered. Hindered means it is stopped. It is not so preferable because of twisting. As we can see, the single bond, carbon-carbon single bond, the rotation is quite easy. But in rotation of carbon-carbon double bond, it is going to twist, overlap of the electron density. So the rotation of carbon-carbon double bond is hindered, and hence one configuration, suppose we have two configuration here, A, B, and another one is opposite side, which is A, and here B. So we can see here A and A are same side, and A and A are opposite side. Similarly B and B are same side and opposite side. इसके बारे में और डिटेल हम लोग पढ़ेंगे जब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में समझेंगे. अभी सिर्फ इसके डेफिनेशन को समझ रहे हैं हम लोग. डेफिनेशन ये है कि these geometrical isomers are non interconvertible and non isolable. सो यहाँ पर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से इसकी रोटेशन जो है ट्विस्ट के वजह से बाधित होती है, हिंडर्ड होती है. इसलिए ये इस स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर में इजीली कन्वर्ट नहीं होते हैं, और इसी वजह से इस स्ट्रक्चर को और इस स्ट्रक्चर को हम लोग आइसोलेट करके लेबोरेटरी में निकाल सकते हैं. दिस स्ट्रक्चर इज फॉर्चुनेटली कॉल्ड सिस एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांस. अभी सिस ट्रांस के बारे में आपको नहीं सोचना है, ये नेम है और ये हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पढ़ने के टाइम डिस्कस करेंगे. सो अभी तक ये क्लियर है. सबसे पहले स्टीरियो आइसोमरिज्म दो टाइप के होते हैं, कन्फिगरेशनल आइसोमर्स एंड कन्फर्मेशनल आइसोमर्स. Conformational isomers are non-interconvertible and they are isolable, and conformational isomers are interconvertible and they are non-isolable. Configurational isomers, there are two type of configurational isomers. One is enantiomers, another one is diastereomers. Enantiomers is caused due to optical isomerism only, यानी mirror images के कारण. Optical means light से संबंधित कुछ है, वो अभी हम लोग डिटेल में समझेंगे. So these are mirror images of each other, so they are optical isomers. The conditions of enantiomers will be discussed on later on. Don't worry. Diastereomers are two type of diastereomers. One is optical diastereomers and another one is geometrical diastereomers. ऑप्टिकल डायस्ट्रीमर्स जहां पे मोर देन वन कायरल सेंटर होंगे. अब कायरल सेंटर क्या होता है, इसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं. जहां मोर देन वन कायरल सेंटर होता है वहां पे नॉन मिरर इमेजेस आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं. ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, घबराने की नहीं है. अब जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, ये ड्यू टू रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है. चूंकि डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड का क्लाउड होता है इस तरीके से, तो इसका रोटेशन हिंडर्ड होता है, ये मुड़ नहीं सकता है, ओवरलैप होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग का. तो इस वजह से इसका रोटेशन एक शेप से दूसरे शेप में रोटेशन टफ होता है, ये रोटेट नहीं कर पाता है. जबकि यहाँ पर ये इजीली रूम टेम्परेचर पर ही रोटेशन होता है, इसलिए ये एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर क्विकली शिफ्ट होता है और इसमें शिफ्ट नहीं होता है. इसी वजह से ये जनरली हम लोग आइसोलेट कर निकाल नहीं पाते, क्योंकि एक स्ट्रक्चर से दूसरा स्ट्रक्चर क्विकली शिफ्ट होता रहता है. लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है और इसको हम लोग इजिली निकाल सकते हैं. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. Welcome back, students. Now the types of stereoisomerism. We were discussing the stereoisomerism. Now the first type of stereoisomerism is geometrical isomerism. This is also called GI. So first of all, we have studied that the geometrical isomerism arises due to the rotation of carbon-carbon double bond. That is this bond. That time we left few more explanations because to make the topic very simple at the introductory level. But now we have to understand all those geometrical isomerism conditions. So first we will know that geometrical isomerism arises in rotation of carbon-carbon double bond. First. Second, rotation of carbon-nitrogen double bond. Third, rotation of nitrogen-nitrogen double bond. And in cyclic compounds also. So there are 1, 2, 3, 4 conditions where geometrical isomerism may exist. Now the necessary condition of geometrical isomerism. First we have to understand what is the necessary condition of geometrical isomerism.
यहाँ पर हम लोग देखेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और इससे एक कंपाउंड ए, इस कार्बन से एक कंपाउंड ए और इस कार्बन से एक कंपाउंड बी जुड़ा हुआ है। सिमिलरली इस कंपाउंड से ए एस्ट्रिक और बी एस्ट्रिक जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो ये दो कंपाउंड है ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू बी, यानी किसी भी एक कार्बन पे जो दो कंपाउंड जुड़े हुए हैं, जो दो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, ये दोनों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। सिमिलरली A asterisk should not be equals to B asterisk. A और B, A asterisk may be equals to A and B asterisk may be equals to B. This may happen, but this should not be happen. Similarly, बहुत आसान शब्दों में अगर देखें तो ये समझना है कि जो कार्बन किसी एक पार्टिकुलर कार्बन पे जो दो ग्रुप हैं वो दो ग्रुप आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। ए और बी आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक इक्वल नहीं होना चाहिए। ये इक्वल हो सकता है, ये इक्वल हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे इक्वल भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा भी है, आप ध्यान से नोट कर लेंगे। Different groups should be attached to each of doubly bonded carbon atoms. So each of these doubly bonded carbon atoms should have these two groups different and these two groups different. Now, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर इस रूल को हम लोग अवॉइड करें, देखें, तोड़ें, तो हम लोग पाएंगे कि इसके अलावा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है। सपोज करें इस कार्बन पे हम लोग दो सेम ग्रुप अगर डाल दें तो यहीं पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज नहीं करता है। अगर इधर भी इक्वल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इधर इक्वल है इधर अनइक्वल है तो भी अराइज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। इधर इक्वल है इधर अनइक्वल है, देखिए ये एग्जांपल है। तो ये दो ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है। बहुत सिंपल है, इधर का ग्रुप सेम है इधर का ग्रुप सेम है, इधर एक भी कार्बन का ग्रुप अगर सेम हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आते हैं एग्जांपल्स पे। पहले हम लोग जिस तरीके से बता चुके हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और साइक्लिक, ये चार कंडीशन है जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज समझ लें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सिंपल नोमेनक्लेचर मेथड क्या है। तो मैं ये ऊपर का पार्ट मिटाता हूं, यहां से एग्जांपल्स का पार्ट रखूंगा। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। इसके दो मेथड्स हैं। अगर कार्बन कार्बन पे ग्रुप्स जुड़े हों ए बी और यहां पर भी ए बी, तो अगर ये सेम ग्रुप जुड़ा हो, एक कार्बन पे ये ग्रुप दूसरे कार्बन पे ये ग्रुप अगर सेम हो, ए हो और इधर बी हो, तो इस टाइप की कंडीशन को जब ए और ए सेम साइड है और बी सेम साइड है, हम सेम साइड इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस बोर्ड के प्लेन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसलिए ये ए और ये ए सेम साइड होगा, ये बी और ये बी अगर सेम साइड होगा तो इसे हम सिस स्ट्रक्चर कहेंगे। इसी का उल्टा अगर ए और ए अपोजिट साइड हो और बी अपोजिट साइड हो तो इसे हम ट्रांस स्ट्रक्चर कहेंगे। आप ध्यान से देखें, सेम साइड सिस एंड अपोजिट साइड ट्रांस। अब थोड़ा सा एक इसमें चेंजेस है, वो चेंज ये है कि अगर ये दो ग्रुप सपोज करें इस पर ए और बी है और इस पर सी और डी है, इसका मतलब है कि इस पर ए इस दोनों तरफ नहीं है, ये बी इस दोनों तरफ नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे? इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि प्रायोरिटी देते हैं। ये प्रायोरिटी जो अटैच्ड ग्रुप, इमीडिएट अटैच्ड ग्रुप है, इसके हिसाब से डिसाइड होता है कि इस दोनों में कौन सा ग्रुप प्रायोर है। हम सपोज करें कि ये इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है, इसकी प्रायोरिटी सेकेंड है, सिमिलरली इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है, इसकी प्रायोरिटी सेकेंड है। प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हैं, इसके लिए एक CIP रूल होता है, वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। तो इस तरीके से है और इसका एक स्ट्रक्चर हम यहां पर ड्रॉ करते हैं जिसमें A यहां पर है, D यहां पर है, C यहां पर है और B यहां पर है। यानी इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी वाले ये दो स्ट्रक्चर है।
आप ध्यान से देखें, यहां पर देखें, ये कार्बन के साथ ए और बी जुड़ा हुआ है और इस कार्बन के साथ सी और डी जुड़ा हुआ है। दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं यहां पर, दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं यहां पर, लेकिन इसकी प्रियोरिटी ज्यादा है। ये जनरली हम लोग हायर मॉलिक्यूलर वेट से डिसाइड करते हैं, हायर एटॉमिक नंबर से डिसाइड करते हैं। इससे जुड़ा हुआ इमीडिएट जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर अगर ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो इसकी प्रायोरिटी 1 होगी। अभी हम लोग एग्जांपल से और सीआईपी रूल इसे बोलते हैं, सीआईपी रूल से भी इसे समझेंगे। ये सीआईपी रूल आपको आगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में भी काम आएगा। ये प्रायोरिटी डिसाइड करना वहां भी हम लोगों को है। तो अभी देखें हम लोग कि अगर ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप और फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप सिमिलरली इस कार्बन पे दोनों अगर सेम साइड है, जैसे कि यहां था सेम साइड, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग जेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। और अगर यही सेम प्रायोरिटी वाला ग्रुप फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब इस कार्बन पे इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है, इसकी सेकेंड है, इस कार्बन पे इसकी प्रायोरिटी फर्स्ट है और इसकी सेकेंड है। इस तरीके से अगर देखें तो हम पाते हैं कि सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप जो है अपोजिट है, तो इसे हम लोग ई बोलते हैं। तो ये जेड है और ये ई है। अभी कंफ्यूज नहीं होना है, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर CH3 है, H है, यहां पर C2H5 है और यहां पर H है। अब हम देखेंगे इससे इमीडिएट जुड़ा हुआ ग्रुप कार्बन है, इससे इमीडिएट ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। तो कार्बन की इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी होगी मॉलिक्यूलर नंबर के हिसाब से या मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से हम देख रहे हैं। इसकी सेकेंड प्रायोरिटी होगी। सिमिलरली इस कार्बन में इसकी फर्स्ट, इसकी सेकेंड प्रायोरिटी होगी। तो हम देख रहे हैं कि इस समय जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं वो दोनों एक साइड हैं, इसलिए ये जेड कहलाएंगे। और अगर इसे हम उल्टा कर दें, यहां पर H दे दें, यहां C2H5 दे दें, यहां पे CH3 दे दें और यहां पर H दे दें, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी और ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये सेकेंड प्रायोरिटी और ये सेकेंड प्रायोरिटी, ये अपोजिट साइड हो गया, तो ये E कहलाएगा। सो अभी Z और E डिसाइड करना काफी आसान हो गया है। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं और आपको सोचने बोलता हूं कि ये Z और E क्या है, आप बताइए। तो आपके लिए ये एक प्रॉब्लम है, आप देखिए। अब आप डिसाइड करिए। अब इसे अगर डिसाइड करना है तो आप यहां पर वीडियो पॉज कर सकते हैं और खुद वर्क कर सकते हैं इस पर और फिर मुझे आंसर बता सकते हैं। मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूं इसके सॉल्यूशन के साथ। तो इस पर देखें कि इस कार्बन से अटैच जो दो एटम है वो कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन का मॉलिक्यूलर नंबर या मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, इसीलिए ये फर्स्ट होगा, ये सेकेंड होगा। सिमिलरली यहाँ ब्रोमीन का ज्यादा है और हाइड्रोजन का दूसरा नंबर पे है, तो ये सेकेंड होगा। अब हम देखें कि फर्स्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप दोनों सेम साइड हैं, तो ये जेड स्ट्रक्चर होगा। सिस और ट्रांस और ZnE मेथड में अंतर यही होता है कि सिस और ट्रांस में ये दोनों ग्रुप सेम होने चाहिए, ये दोनों ग्रुप भी सेम होने चाहिए। Z और E में ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। एक ये ग्रुप सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो दो तरीके का नोमेनक्लेचर है, सिस, ट्रांस, Z और E। जनरली आप Z को सिस बोल सकते हैं और E को ट्रांस बोल सकते हैं। ये आपस में जस्ट कोरिलेट करने के लिए, याद रखने के लिए, अदरवाइज ये इनसिग्निफिकेंट है, बहुत सिंपल है। अब मैं आपको एक कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन देता हूं। ये क्वेश्चन है, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, यहां पर C2H5 है, यहां पर H है। अब आप देखिए इस एग्जांपल में आपको लगेगा कि ये CH3 दोनों सेम ग्रुप है और सेम साइड में है, इसलिए ये सिस स्ट्रक्चर या जेड स्ट्रक्चर अकॉर्डिंगली होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा आंसर देते हैं तो ये गलत होगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि ये सिस या ट्रांस के कैटेगरी में नहीं है। सबसे पहले क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम है लेकिन ये दोनों ग्रुप सेम नहीं है, या ये दोनों ग्रुप सेम नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है कि ये सिस ट्रांस में नहीं जाकर ये जेड और ई में जाएगा। और जेड और ई डिसाइड करने का मेथड क्या है कि सबसे पहले आप कार्बन पे प्रायोरिटी दें।
इस कार्बन से अटैच 2 ग्रुप हैं, तो प्रायोरिटी मॉलिक्यूलर नंबर या मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग हम इसको देंगे। यहां पर ये कार्बन अटैच है, आप देखें इस कार्बन पर और इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 1 कार्बन है नेक्स्ट। तो इस लेवल पे जो नेक्स्ट अटैच्ड ग्रुप है इस कार्बन से, वहां पर टाई हो जा रहा है, इस कार्बन से भी कार्बन, इस कार्बन से भी कार्बन। तो टाई होने के बाद हम फर्दर नेक्स्ट ग्रुप को देखते हैं जो सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग है। हम लोगों ने अभी बताया कि हम लोग सीआईपी रूल डिस्कस करेंगे, यही सीआईपी रूल है। इसके सीआईपी रूल के और भी बहुत सारे पार्ट हैं, ये एक पार्ट है। तो इस कार्बन से इस कार्बन के बॉन्ड के बीच में ये है, लेकिन यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिर्फ हाइड्रोजन है, यहाँ कार्बन है। तो ऑब्वियसली ये एक बड़ा ग्रुप है और इसमें ये इसकी वजह से ये विन ओवर हो जाता है। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी होगी, ये सेकंड प्रायोरिटी होगी। अब हम देखें, जिसे हम सेम ग्रुप मान रहे थे वो अलग प्रायोरिटी वाली ग्रुप है। फर्स्ट प्रायोरिटी अपोजिट साइड है, इसीलिए ये ई स्ट्रक्चर है, ना कि सिस या ट्रांस स्ट्रक्चर। सो हम लोग इसे ई स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो यहां पर आप लोगों को ये क्लियर हो गया है। अभी मैं वीडियो पॉज करता हूं, सीआईपी रूल आगे। वेलकम बैक। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। तो हम लोगों ने देखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलोंग एग्जिस्ट करता है, रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कारण। इसका हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसमें हम लोग सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर भी देख लिया और सिमिलरली जेड और ई नोमेनक्लेचर भी देख लिया। सीआईपी रूल की थोड़ी सी डिस्कशन हमने की है। इस टॉपिक के बाद हम लोग सीआईपी रूल अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हम लोग देख चुके हैं, सॉरी कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के बीच देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल जो लोन पेयर होता है इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है, कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है, इसलिए हमेशा लोन पेयर को हम लोग लिस्ट प्रायोरिटी देंगे। सीआईपी रूल में इसे लिस्ट प्रायोरिटी दी गई है। तो इस जगह पर हम देखें कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पर, सॉरी कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है यहाँ पर और इससे ये कार्बन CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप होगा, ये सेकेंड ग्रुप होगा। सिमिलरली इधर हाइड्रोजन फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकेंड ग्रुप होगा, क्योंकि लोन पेयर हमेशा लिस्ट प्रायोरिटी में ही जाएगा आपका। तो इस तरीके से अगर देखें हम लोग तो फर्स्ट प्रायोरिटी और फर्स्ट प्रायोरिटी अपोजिट साइड है, तो ये ये ई आइसोमर होगा। और यहाँ पर जो फर्स्ट प्रायोरिटी ये है और फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकेंड प्रायोरिटी ये है, सेकेंड प्रायोरिटी ये सेम साइड है, तो ये जेड आइसोमर होगा। तो ऑब्वियसली इसमें भी सिस और ट्रांस कंसेप्ट नहीं आकर जेड और ई कंसेप्ट आ रहा है, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में था वही कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में ही होगा। सिंपल ये है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर लोन पेयर है और लोन पेयर को हमेशा हम लोग लिस्ट प्रायोरिटी देते हैं। थर्ड एग्जांपल है हमारा, वो है नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के अलोंग। ये भी काफी इजी है समझना। नाइट्रोजन नाइट्रोजन में दो, ये इसके लोन पेयर है और ये इसके लोन पेयर है, दोनों नाइट्रोजन के, और ये दोनों लोन पेयर हमेशा लिस्ट प्रायोरिटी में ही आएंगे। तो अगर लिस्ट प्रायोरिटी ये है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ये वाला होगा, इस पर फर्स्ट प्रायोरिटी ये, सेकेंड ये, फर्स्ट ये, सेकेंड ये। तो अगर फर्स्ट प्रायोरिटी सेम साइड है तो ये आपका सिस या ट्रांस यानी जेड हो जाएगा और ये आपका सिमिलरली ई हो जाएगा। तो यहां पर हम कहते हैं कि ये दोनों ग्रुप सेम है, ये दोनों ग्रुप सेम है, तो इसे आप जेड या सिस भी बोल सकते हैं, इसे आप ट्रांस या ई भी बोल सकते हैं। तो कोई ये इश्यू नहीं है, आप इसको सिस ट्रांस भी बोल सकते हैं, जेड ई भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब आते हैं हम लोग चौथा टाइप, वो है आपको कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है इसमें सारे, और इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर है, मतलब साइक्लो एल्केन के बीच। तो इसमें अगर हम देखें तो ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि ये जो 3 कार्बन है ये ऑलमोस्ट सेम प्लेन में है, और ये CH3 प्लेन के ऊपर, ये CH3 प्लेन के ऊपर, और ये H प्लेन के नीचे, H प्लेन के नीचे, इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से। तो सपोज करें कि ये वाला पार्ट ऊपर आ रहा है, ये वाला पार्ट नीचे जा रहा है, ये वाला पार्ट नीचे जा रहा है, तो ऊपर अगर सेम ग्रुप अटैच्ड हो तो इसे हम सिस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। सेम साइड सेम ग्रुप सिस स्ट्रक्चर, और अपोजिट साइड सेम ग्रुप, तो इसे हम लोग ट्रांस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं।
ये समझना काफी आसान है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको किसी भी बुक में मिलेंगे। 2, 4, 10 एग्जाम्पल का आप प्रैक्टिस करिए और आप इसमें बहुत अच्छे प्रोफिशिएंट हो सकते हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जो ये 5वां केस है, इस केस के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस नहीं किया, अभी कर रहे हैं। ये है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन रिंग स्ट्रक्चर। अगर रिंग में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, तो अगर हम देखें यहां पर ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इससे रिंग का पार्ट इधर जुड़ा हुआ है, इससे रिंग का पार्ट इधर जुड़ा हुआ है, और H इधर जुड़ा हुआ है, H इधर जुड़ा हुआ है। तो अगर प्रियोरिटी हम डिसाइड करें तो इस कार्बन से ये कार्बन है तो इसकी फर्स्ट प्रियोरिटी, इस कार्बन से ये कार्बन ये फर्स्ट प्रियोरिटी, हाइड्रोजन ऑब्वियसली सेकेंड प्रियोरिटी। तो जो फर्स्ट प्रियोरिटी वाले ग्रुप हैं वो अपोजिट हैं, इसीलिए ये ट्रांस स्ट्रक्चर है। सिस ट्रांस में ये ट्रांस स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर या ये स्ट्रक्चर सेम है। आप इससे अगर समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इससे समझ सकते हैं। ये ज्यादा आसान है क्योंकि हम लोग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का इस टाइप का स्ट्रक्चर पहले भी देख चुके हैं। अब देखें कि इस स्ट्रक्चर में चूंकि ये पाई बॉन्ड के अलोंग जो ट्विस्टिंग हो रही है, इस सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग हो रही है, इसके वजह से ये काफी अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है। इसका जो स्टेबल स्ट्रक्चर है वो सिस स्ट्रक्चर है। इसमें यहाँ पर H सेम साइड और ये C ग्रुप सेम साइड होता है, तो ये सिस स्ट्रक्चर है। ये सब के भी काफी एग्जांपल्स डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में और डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में आपको मिलेंगे। आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे। तो ये था हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है। थोड़ा सा अगर हम इसमें और ऐड करें तो स्टेबिलिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, और वो इस तरीके से होता है। स्टेबिलिटी दो बातों पर डिपेंड करती है। पहला है कि अगर इधर और इधर का ग्रुप हायर प्रियोरिटी का है, 1 नंबर का है, इधर का ग्रुप लोअर प्रियोरिटी का है, इसका मतलब इससे जो ग्रुप अटैच्ड है वो डायरेक्ट एटम लार्जर एटॉमिक नंबर का है, इसमें भी लार्जर एटॉमिक नंबर का है, ये लेसर एटॉमिक नंबर का, ये लेसर एटॉमिक नंबर का है। तो चूंकि ये सेम प्लेन में है, इसीलिए ये ग्रुप लार्जर होने की वजह से और ये ग्रुप लार्जर होने की वजह से यहां पर आपको एक इंट्रामोलिकुलर रिपल्सन मिलेगा, जिसे हम लोग वॉन डेर वाल फोर्सेस बोलते हैं। ये हम लोग बॉन्डिंग में शुरुआत में पढ़ चुके हैं, वॉन डेर वाल रिपल्सन बोलते हैं। यहां पर आपका जो वॉन डेर वाल रिपल्सन आएगा, इसके वजह से ये स्ट्रक्चर थोड़ी वीक हो जाती है, इसलिए ये थोड़ी अनस्टेबल होती है। एक और रीजन होता है कि इस तरीके से अगर हम देखें तो अगर हम सपोज करें कि ये एक एग्जांपल लेकर हम देखते हैं, CH3 और CH3H और H अगर हम लेते हैं, तो जो केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। आपको ध्यान रखना है, केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट और फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट अलग होता है। फिजिक्स में अगर आप पोल लें, प्लस पोल माइनस पोल, तो फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, लेकिन केमिस्ट्री में जब हम डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। इस तरीके से हम लोग लिखते भी हैं आउटवर्ड पॉजिटिव। सो ये केमिस्ट्री में होता है और ये फिजिक्स में होता है डाइपोल मोमेंट। ये टॉपिक से थोड़ा अलग है, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि अगर इसकी बात करें हम लोग, तो ये C ग्रुप जो है, इसकी डोनर पोलर डोनेटिंग कैपेसिटी है। तो ये C ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसको हाइड्रोजन कुछ भी नहीं कर पाता है, न्यूट्रल लगभग करता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसका डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट इधर आता है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं इसका एक रिजल्टेंट है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एक रिजल्टेंट आएगा। तो ये सिस स्ट्रक्चर था, ये हम लोग सिस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा। अगर इसी को हम लोग ट्रांस स्ट्रक्चर में देखें तो ये CH3 इधर लेते हैं, ये CH3 इधर लेते हैं, ये H यहाँ, ये H यहाँ। अब ट्रांस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है और इसका डाइपोल मोमेंट है, ये लगभग अपोजिट साइड में है और ऑलमोस्ट इक्वल है, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो टेंड्स टू 0 बोलते हैं। ये ट्रांस स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से हम देखें कि दो फैक्टर है, एक तो डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, जिसके वजह से ये थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है। इसका डाइपोल मोमेंट लगभग 0 होता है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है। और दूसरा है आपका वॉन डेर वाल फोर्सेस हिंडरेंस, स्टेरिक हिंडरेंस या वॉन डेर वाल फोर्सेस। बड़ा ग्रुप सेम साइड हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करता है, जिससे ये बॉन्ड वीक हो जाती है। तो इन जनरली हमारा जो ट्रांस स्ट्रक्चर है, या ट्रांस के साथ हम लोग E बोलते हैं, और जो सिस स्ट्रक्चर है इसके साथ हम Z बोलते हैं। तो
तो ट्रांस स्ट्रक्चर है मोर स्टेबल होता है इन जनरल। कुछ स्पेशल केसेस हैं जो हम लोग आगे समय आने पर डिस्कस करते जाएंगे, उन केसेस को अभी हम लोगों को इतना ही सीखना है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का अभी हम लोग एंड करते हैं। अब हम लोग सीआईपी रूल सीख लेंगे, जिससे कि हम लोग पूरा का पूरा प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। सीआईपी रूल थोड़ा सा हम लोग सीख भी चुके हैं, थोड़ा अभी और सीख लेते हैं। सीआईपी रूल सीखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दोनों जगह काम आता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों में काम आता है। तो सीआईपी रूल या सीक्वेंस रूल्स, इसे हम लोग सीआईपी रूल बोलते हैं। सीआईपी रूल बोलते हैं। सीआईपी जरूरत नहीं है, लेकिन ये चैन इन गोल्ड प्रीलॉग सीक्वेंस रूल का शॉर्ट फॉर्म है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जिस कार्बन पे 2 ग्रुप या 3 ग्रुप, आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 2 ग्रुप होंगे और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में 3 ग्रुप होंगे। ये तो अटैच ही रहेगा, इसके साथ ये 2 ग्रुप इस तरीके से अटैच्ड होंगे। तो 4 ग्रुप होंगे यहाँ पर, जिसमें एक तो बॉन्ड से ही अटैच्ड होगा। ये 3 को प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड से अटैच्ड होगा, इस 2 में प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो इमीडिएट अटैच्ड ग्रुप है उसमें जो एटम डायरेक्टली इससे अटैच्ड है उसको देखेंगे। फर्स्ट रूल यही है कि ये जो डायरेक्ट अटैच्ड एटम है उसको देखेंगे। डायरेक्ट अटैच्ड एटम का मॉलिक्यूलर नंबर अगर इससे इसका ज्यादा है, जो ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। तो मॉलिक्यूलर नंबर, समटाइम्स मॉलिक्यूलर नंबर सेम होता है, तो उस समय हम लोग मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के केस में, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के केस में मॉलिक्यूलर नंबर सेम है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट इसका 2 है, इसका 1 है। तो प्रायोरिटी वाइज इसकी प्रायोरिटी 1 होगी और इसकी प्रायोरिटी 2 होगी, अगर इस तरीके से ये जुड़ा हुआ हो। तो मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं, जिसकी मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होती है उसकी प्रायोरिटी फर्स्ट होती है। सो हम लोग प्रायोरिटी विल बी हायर इफ मॉलिक्यूलर नंबर और मॉलिक्यूलर वेट इज हायर। सो दिस इज आवर फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल, कभी कभी ऐसा हो रहा है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, जैसे यहाँ पर C2H5 और यहाँ पर CH3 हम लोग लें। तो इस कार्बन से जो डायरेक्ट अटैच्ड ग्रुप है वो कार्बन है, और इस कार्बन से भी डायरेक्ट अटैच्ड ग्रुप है वो भी कार्बन है। ये दूसरा रूल हम लोग देख रहे हैं। तो इस कंडीशन में फर्स्ट डायरेक्ट अटैच्ड ग्रुप में टाई अप हो जा रहा है, कार्बन कार्बन है। तो ऑब्वियसली अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर चुके थे हम लोग, सेकेंड कार्बन ग्रुप को देखेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड अटैच्ड ग्रुप को देखेंगे, सॉरी, सेकेंड अटैच्ड ग्रुप जो है वो कार्बन है, लेकिन इसमें कार्बन नहीं है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। फर्स्ट इसकी प्रायोरिटी होगी, सेकेंड इसकी प्रायोरिटी होगी। ये सेकेंड रूल हुआ। थर्ड रूल, अगर इस कार्बन से इस कार्बन के बीच ये दोनों कार्बन है और यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, 3 सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो हमें ये समझना है कि C डबल बॉन्ड C अगर इससे भी डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो दिस ग्रुप इज इक्वल्स टू C लाइक दिस। सो एक ही कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं ऐसे, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाती है। अगर इससे भी C जुड़ा हुआ है, इससे भी C जुड़ा हुआ है, तो डबल बॉन्ड वाले की प्रायोरिटी फर्स्ट होगी, इसकी प्रायोरिटी सेकेंड होगी। इस तरीके से हम लोग CIP रूल वेरी इजीली डिसाइड कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये काफी आसान है, जिसे हम लोग आगे यूज करेंगे।
इसके अलावा ये तो हम लोग देख ही चुके थे कि बॉन्ड पेयर की जो होती है प्रियोरिटी वो लोन पेयर से ज्यादा होती है। अगर यहाँ हाइड्रोजन भी है और यहाँ अगर लोन पेयर है, सपोज करें ये मेरा नाइट्रोजन है, तो इसकी प्रियोरिटी फर्स्ट होगी, इसकी प्रियोरिटी सेकेंड होगी। लोन पेयर की प्रियोरिटी हमेशा सेकेंड होती है। चलिए अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का एक छोटा सा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो थोड़ा सा हम लोगों ने स्टेबिलिटी के बारे में डिस्कस किया था और वहां पर देखा था कि जो यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर देख लें अच्छे से, फर्स्ट इज सिस आइसोमर, सेकेंड इज ट्रांस आइसोमर। ट्रांस की स्टेबिलिटी जो होती है वो सिस से ज्यादा होती है, क्योंकि ट्रांस में जो बड़े दो ग्रुप होते हैं वो अपोजिट साइड चले जाते हैं, सिस में दो बड़े ग्रुप सेम साइड में रहते हैं। यानी वॉन्डर वॉल रिपल्सन के वजह से सिस आइसोमर जो है वो लेस स्टेबल होता है और ये मोर स्टेबल होता है। अब आते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट हम लोग पहले देख ही चुके हैं। डाइपोल मोमेंट हम लोगों ने बताया कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, चूंकि क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है इसलिए इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर शिफ्ट होगा इस बॉन्ड का, ये सिग्मा बॉन्ड का, तो इधर पॉजिटिव सेंटर क्रिएट होगा और इधर नेगेटिव सेंटर क्रिएट होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी उसी तरीके से क्रिएट होगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट दोनों इस साइड है, तो एक रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है वो हमें यहाँ मिलेगा, यानी म्यू इज नॉट ऑब्वियसली इक्वल टू 0 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर डाइपोल मोमेंट इधर है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट इधर है और ये काफी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0, ऑलमोस्ट 0 के करीब मिलेगा। तो डाइपोल मोमेंट इज क्वाइट ऑब्वियस, सिस के डाइपोल मोमेंट ज्यादा होते हैं, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होते हैं और ट्रांस के डाइपोल मोमेंट कम होते हैं। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट सिस के ज्यादा होते हैं, ट्रांस के कम होते हैं। यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन इसके लिए लिखा हुआ है कि अगर डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, एक मॉलिक्यूल का पोलर मॉलिक्यूल ज्यादा है, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होने का मतलब उसमें डाइपोल्स ज्यादा हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का इफेक्टिव रिजल्टेंट ज्यादा है, तो इसका इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होता है। अगर हम समझें इस तरीके से कि एक ग्रुप है जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये अपने दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, ये अपने पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली इसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगे, तो एक मॉलिक्यूल का जब दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग ज्यादा होगा सेम ही कंपाउंड में, आपस में एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से अगर बॉन्डिंग ज्यादा होगा ड्यू टू दिस पोलैरिटी, तो वो उसको बॉइल करने में ज्यादा टेम्परेचर का आवश्यकता होगा। सो बॉइलिंग पॉइंट जो है मेरा सिस का ज्यादा होगा ट्रांस के कंपैरिजन में। ट्रांस में ये इफेक्टिव चार्ज जो होता है इस मॉलिक्यूल का म्यू 0 है, इसलिए एक डाइपोल की तरफ बिहेव नहीं कर सकता है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब सॉल्युबिलिटी इन वाटर आते हैं। सॉल्युबिलिटी का पूरे वर्ल्ड में एक ही रूल है जिसे हम लोग थंब रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, वो है लाइक डिसॉल्व लाइक। सॉल्युबिलिटी की एक ही रूल है, वो है लाइक डिसॉल्व लाइक। आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिखता हूं लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब है सेम टाइप का मॉलिक्यूल सेम टाइप के मॉलिक्यूल में घुलेगा, सेम टाइप का सॉल्यूट सेम टाइप के सॉल्वेंट में ही घुलेगा। सेम बोलने का मतलब पोलर और नॉन पोलर से। सो पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर मॉलिक्यूल एंड non-polar will dissolve in non-polar molecule. Water is a polar molecule. We all know water is very polar molecule. आप इसका स्ट्रक्चर जानते हैं, ये V शेप का होता है, H2O, HOH। So इस तरीके से इसकी पोलैरिटी होती है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। So ये पोलर मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पॉजिटिव टू निगेटिव इस तरीके से आप ले सकते हैं। नेट डाइपोल मोमेंट ये होता है, डाइपोल मोमेंट नेट। So water is a very polar molecule. तो जिसकी पोलैरिटी ज्यादा हो वो वाटर जैसे पोलर मॉलिक्यूल में ज्यादा अच्छे तरीके से डिसॉल्व होंगे या सॉल्युबल होंगे। अब जिसकी डाइपोल मोमेंट आप देख लें, पोलर कौन सा है जिसमें ज्यादा है सॉल्युबिलिटी? पोलर इसके ज्यादा है क्योंकि इसका म्यू 0 नहीं है, इसका म्यू 0 है, तो ऑब्वियसली पहला वाला ग्रुप का सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा जो कि सिस है। सो यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ सकते हैं। फिर आते हैं मेल्टिंग पॉइंट की बात। तो मेल्टिंग पॉइंट में सिस मॉलिक्यूल और ट्रांस मॉलिक्यूल में जब हम देखेंगे तो ट्रांस मॉलिक्यूल इज मोर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल देन सिस मॉलिक्यूल। ये काफी सिमेट्रिकल होता है, ये कार्बन सेंटर से इधर सेम ग्रुप, इधर सेम ग्रुप, इधर सेम ग्रुप, इधर सेम ग्रुप, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री को फॉलो करता है। ये देखिए
यहाँ से ये अगर इधर आते हैं हम लोग तो सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप, सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप, यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप, यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप। तो यहाँ पर एक सेंटर ऑफ सिमेट्री क्रिएट होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, CS सिंपली लिखते हैं, आप समझ सकते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो ये बहुत सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है और मेल्टिंग पॉइंट का ये रूल है, more symmetrical molecule will have greater melting point, so trans molecule will have greater melting point। सॉलिबिलिटी हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हैं। और बाय द टाइम आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे, इस पर और ज्यादा वर्क करते जाएंगे, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स बनाते जाएंगे, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग सेंस डेवलप हो जाएगा, जिससे आप बिना याद किए भी आंसर बता सकते हैं। सिंपल सा रूल है, प्रैक्टिस से आपको समझ में आने लगेगा, याद करने की जरूरत अभी नहीं है। प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें और इसे आप खुद ही समझ सकते हैं। तो यहां पर हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का चैप्टर खत्म होता है। अब हम फर्दर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करेंगे और ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, ये सारी चीज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।